शुरू कर सकते हैं और अदरवाइज हम कुछ डिस्कस करेंगे या मैं आप लोगों से प्रश्न। आरपी गायरोला जी आप आएंगे, आप बात करेंगे। सर एक्चुअली मैं काफी समय से अनटच था सर इससे। मेरा कोर्स अभी ऑलमोस्ट एवो 1 ईयर होने वाला है। हाँ, I have studied that fully, but I have not been able to attend the exam. that's perfectly fine. No, the course you can study it, but have you made notes and have you followed the procedure? Sir, yes, sir. Only a little part of that selling tips, selling skills that is remaining for notes. Okay. Very good. So where do you stay, Mr. Garola? I stay in Dehradun, sir. Oh, you stay in Dehradun. Okay. And what do you do? I'm basically a retired pensioner from Indian Navy. From Indian Navy? Yes, sir. Oh, so you were a sailor? Yes, sir. Yes, sir. Sailor. Okay. And now I'm a sailor here in direct sailor. Now you are actually, only the spelling has changed. The Yes. pronunciation is the same. Sure, sir. So you were a sailor earlier also, and now also you are a sailor. Yes, sir. Great. That must be fantastic because Indian Navy is a phenomenal experience to have. Great. So how long you have been working in this field now? Sir, this field, it is actually olden days. I was there during the first page when our Guru Satish Panditji was there. That was 2003, 2002 and 2003. With him. Okay. And later on, I was silent for another 12 to 15 years. I rejoined. Because if you were there when Satish Pandit ji was there, so you are one of the best persons. Sorry, sir. Thank you, sir. Thank you for the regards. So अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपने काम शुरू कर दिया? You started working on... Trying to learning the things more deeply, sir. Okay. Okay. So course you have done people with your background, and you should be able to do very good business in no time. I mean, a lot of people struggle with contacts and all that, but with people with your background can really, we have seen a lot of people with similar backgrounds do very well. Sure, sir. Contacts and all, it is the similar for me also like others, but my intention is to learn myself first. Yeah, of course. No, that's where it begins. That's where it starts. And so fantastic. Great. चलिए. So when do you think you will complete? So whatever is pending. I'm just stressing the thing once more, and I'll appear the exam. I get the certificate, and then I'm thinking to go to the public more frequently. Okay, very good. Interesting. Also, आप parallelly कर सकते हैं. ऐसा नहीं है you have to complete the course only and then only you have to go out. It is not that like that. You can do both. I can do it, sir. I'm doing it otherwise also. Okay. During that annual Delhi program, I was there in that program with my family, with my wife. Oh, okay. We are for that. And okay, around great. right, sir. Oh, perfect. Good. So let's hope that you are able to put into practice what you learn here and increase your earning. So that Sure, is, sir. That is great. Perfect. चलिए, let's move forward और हम आगे बढ़ते हैं और अजय साहू जी आप बात करेंगे? यस सर, नमस्कार. जय आरसीएम.
नीति शायद, मेरा चार्ज नीति शायद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ओके ओके। फिर ये कोर्स मैंने लगभग एक साल किया था, लेकिन बीच में देखा नहीं, लेकिन अभी अभी नोट्स बनाना चालू किया है सर। काफी सारा नोट्स लीवर तक मैं आ चुका हूँ। ओके, लीवर तक मैंने नोट्स बनाया अभी एक्यूरेट। और अभी जो कौशल का जो आपने जो बताया था वहाँ पर वीडियो डाले हुए हैं, वो मैं देख रहा हूँ, कस्टमर से जाके बात भी कर रहा हूँ। कुछ मैंने जो न्यूट्री चार्ज में पिछले एक बार न्यूट्री चार्ज एडवांस से एनसीसी कोर्स पहले हुआ था सर। तो उसमें जो कार्ड दिए थे नाम के हिसाब से, कार्ड 25 कार्ड दिए होते हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से पहले, तो उस टाइप के कार्ड बनाए हुए। तो मैं किसी भी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी भी अपार्टमेंट में जाता हूँ और डोल डोल जो है क्रॉप करके करता हूँ कि सर हमारा हेल्थ का काम है, यदि आपको कोई हेल्थ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे किस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, सभी अपार्टमेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे परमिशन लेके मैं जाता हूँ और हर रोड पे मैं इस टाइप से काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारा डिफरेंस तो आते हैं, उतना कॉन्टेक्ट नहीं मिल पाता, लेकिन लोगों को जागृति होती है। एक महीने में एक बार जाता हूँ, फिर दूसरे महीने दूसरी बार भी जाता हूँ डालने के लिए। कोई मिलता है, फिर नहीं डालता तो बंद होता है दरवाजा, तो नीचे से मैं कार्ड डाल देता हूँ। ऐसा अभी कर रहा हूँ सर, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। और वो आपने मैंने एक पढ़ा था अभी, करीब 10 या 12 दिन हुए उसको पहले पढ़ा था मैंने, C1 C2 और C3। और ये जो आपसे जो मीटिंग है, ये मैं करीब 2-3 दिन से अटेंड कर रहा हूँ सर। C1 C2 और C3 जो आपने जो लिस्ट बनाई थी, उसके लिए मैंने काफ़ी, और जो C5 की जो लिस्ट है वो मैंने लगभग अभी बनाई है सर। कितने लोगों की बनाई है? ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, ये लगभग 25 लोगों की अभी मैंने रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस जो कस्टमर होते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर हो जाए, जिनका प्रोडक्ट देते हैं, तो उनसे नंबर लिए हैं। अभी ये लगभग 2 लोगों से मैंने बात किया है और दो लोगों से अपॉइंटमेंट लिया है, तो उनसे मिलने जाना है। बहुत बढ़िया। ये तो और बढ़ेगा जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे। आप एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? सर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, और ये मेरे को भीलवाड़ा आया था, तभी मेरे को गिफ्ट मिली थी ये बुक। अहमदाबाद में रहते हैं? यस यस सर, अहमदाबाद में हूँ सर मैं। अहमदाबाद तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी जी सर, जी सर। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ इसके बारे में काफ़ी सारी, और लगातार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और सीखते सीखते काम कर रहा हूँ मैं सर अभी। और जो मैंने जो तरीका अपनाया है वो सर ठीक है क्या आपको? देखिए, आपको C5 सबसे ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और आपने सही तरीका अपनाया कि C1 C2 C3 भी बना लिया है। और उसके अलावा आपने जैसे बताया लोगों से आप मिल रहे हैं, अनजान लोगों का C5 का लिस्ट आपका 25 लोग बोला ना आपने, 25 का बन गया है। जी हाँ जी सर, 25 लोगों का है, 2 लोगों को मैंने हाँ, कॉल किया पर है। ये लिस्ट और बढ़ेगा। देखिए, अनजान लोगों तक पहुंचने का रास्ता जानकार लोगों से होकर जाता है। ये आप सब लोग जी लिख लें इस बात को, इसको कहीं पे भी भूले नहीं कि अनजान लोगों तक होने का रास्ता जानकार लोगों से होके जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जानकार लोग शायद आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं, लेकिन वो आपको दूसरों का नाम पता जरूर बता देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पे भरोसा तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपको चिपकाने वाले इसलिए खुद खरीदना नहीं चाहते। लेकिन वो आपको शायद दूसरों को, आप उनके मित्रों तक, उनके जानकार लोगों तक मिलने का शायद रेफरेंस दे सकते हैं। तो वो फास्ट तरीका है रेफरेंस बढ़ाने का। और एक बार जब आप कोर्स पूरा देख लेंगे और जो सेलिंग के हिसाब से जो पूरी सारी स्टेप्स बताई गई है, कैसे कनेक्ट बनाना है, कैसे हमें सही तरीके से प्रश्न पूछना है, पूरा जो सेलिंग का प्रोसेस है उसको ठीक से अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। सबसे पहली जरूरत होती है किससे मिलना है उसके, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो तरीका आपका सही है। स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, प्लस
आप अहमदाबाद जैसे शहर में हैं जो कि भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है, तो अहमदाबाद में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने के। अहमदाबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, और आपको तो 100, 150, 200, अच्छा अहमदाबाद में पैसा बहुत है, लोगों के पास स्वास्थ्य के प्रति रुझान भी होगा, जानकारी होगी, लोगों को सुनने को वो तैयार रहेंगे। तो आप अहमदाबाद में आप कौन से एरिया में रहते हैं? एक मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी। तो चांदुरिया है, तो घाटपुरिया के पास में चांदुरिया एरिया है। यहाँ पे गोदरेज गार्डन सिटी है, गोदरेज का बहुत बड़ा। फिर उसके बाद में काफी सारे अपार्टमेंट, काफी सारा प्राइम एरिया भी डेवलप हुआ है यहाँ पर। हाँ, अब तो अहमदाबाद बाहर ही बढ़ता जा रहा है। तो जी जी सर। एक्सपांड जब होता है, और जिस तरह का आपने बताया सोसाइटीज है, वहाँ तो सब लोग ऐसे रहेंगे जो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको ये दिक्कत तो आएगी नहीं कि लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे है, ये जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो आएगा ही नहीं आपके। जी जी सर। लोग मिलेंगे, आपको सिर्फ जाके लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसी में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपने बताया गोदरेज का इतना बड़ा टाउनशिप है या सोसाइटी है, वहीं पे आप कुछ ग्राहक बनाइए अगर आपके घर के पास में, और उसी में बढ़ाते जाइए। आपको चाहिए कितने? 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 200 लोग चाहिए, 200 ग्राहक, वो वही मिल जाएंगे आपको एक ही जगह पे। लेकिन सर्विस करना पड़ेगा। जो पूरा स्टेप वाइज हमने सीखा है सेल्स के बारे में, वो सीखना पड़ेगा, रिजल्ट तब आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। Milind, you're on mute. ओ आई एम ऑन म्यूट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलिए आपने कोर्स कितना देख लिया है, ये मैं अजय जी को पूछना चाहता सर, मैंने कोर्स से लगभग 65% के आसपास देखा है, हूँ। और बीच बीच में छूटा भी है तो कवर किया है, जल्दी जल्दी में देखा। तो अभी मैं एकदम कंटिन्यू तरीके, जिस तरह के आपने बताया, एक बार मैंने आपकी मीटिंग की थी, एक बार कोर्स को 2 बार देखना है जो भी है, फिर उसके बाद तीसरी बार उसको 30 सेकंड देखने के बाद में उसको देखना है, फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करना है। उसी तरीके से मैं सर नोट बना रहा हूँ। अभी जो लीवर का जो सेशन है खंड 3, वो वहां तक मैं पहुंचा हूँ सर। खंड 1, खंड 2 और खंड 3 हो गया है मेरा। खंड 3 में लगभग आज ही मैं लगभग खंड 3 मैंने पूरा किया है। लीवर क्या आप है थोड़ा ना उसके सेल्स भी बाद। देखना चालू कीजिए, ऐसा नहीं जो एक चैप्टर बाय चैप्टर ही देखना पड़ेगा, सेल्स भी थोड़ा ओके देखना चालू कीजिए, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं ना, सेल्स के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है वहाँ कोर्स पे। तो ओके सर, मैं मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन बॉडी पार्ट्स, एक दिन सेल्स, ऐसा भी कर सकते हैं मिक्स करके। ओके सर, मैं सेल्स का पहले देखूंगा, अभी पूरा सेल्स हाँ, का उसका नोट बना के और उसका काम करूंगा सर। ठीक है। और सर बढ़िया ये है। जो एक्सपर्टिफाई जो ऐप है, वो कस्टमर को वीडियो है, कुछ लीवर के, कुछ हार्ट के, तो वो मैं कस्टमर को दिखाता हूँ, दिखा सकते हैं ना सर? किसी को हाँ, प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन हमारे एकदम बॉडी में दिखा कैसे सकते हैं। काम करता है। बिल्कुल दिखा सकते, 100%। हाँ हाँ, तो क्या है उससे, क्या कस्टमर जल्दी कन्विंस होता है। हमारी बात कम मानेगा, लेकिन वो देख लेता है तो काफी सारा वो इसको स्वीकार कर लेता है सर। ओके, तो बढ़िया है। पर आपने जो बात की, एक बार वो, चूंकि मेरी रोज आदत है एक बार वीडियो को कैसे देखना है वो बताने की, तो मैं कुछ नए साथी
रोज होते ही हैं कभी न कभी, इसलिए वो वीडियो मैं जरूर शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कोर्स को देखने वाली बात हम देख लें। कोर्स को हमें देखना किस तरह से। अजय जी, हम आपको म्यूट में डाल रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, मैं कर देता हूँ। Right. में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद आती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी नए साथी हैं उन्होंने ये तरीका एक बार देख लिया होगा कि हमें कोर्स को ज्वाइन कैसे, देखना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने। क्योंकि अगर इस कोर्स से हम फायदा उठाना चाहते हैं ना अपनी, अगर हम जिंदगी में कुछ चीजों को बदलना चाहते हैं तो ये फॉलो पूरा करना पड़ेगा, इस शॉर्टकट मार के नहीं चलेगा। तो इस बात का हम सभी ध्यान रखें। आइए और आगे, आज जब हमने अभी शुरुआत की तो C1, C2, C3, C4, C5 ये हम डिस्कशन कर रहे थे लिस्ट बनाने के बारे में। और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से लिस्ट बनाई। एक तो पहले जो लोग वीडियो शुरू कर सकते हैं पहले वो वीडियो शुरू कर लें, बिकॉज हमने अगर सोचा है कि हमें यहाँ समय देना है तो फिर वीडियो बंद रखने का मतलब नहीं है ना। एक बार में एक ही काम कीजिए। अगर हमें लग रहा है कि ये भी सुन लेते हैं और कुछ और भी कर लेते हैं, दोनों ही चीजें ठीक से नहीं होगी। तो किशोर जी, आपने कोर्स कितना देखा है? किशोर भोई नमस्ते सर। जी बोले। हाँ सर, मेरा कोर्स तो चालू है, नोट भी चालू है सर। अच्छा, देखा कितना अभी तक? कितना देख लिया है? चालू है वो तो अच्छी बात है। हाँ सर, मैं भी ज़्यादा तो नहीं गया हूँ सर। सर, थोड़ा बहुत किया हूँ, ज़्यादा नहीं है किया है कंप्लीट करा। ओके, थोड़ा बहुत। हाँ सर। थोड़ा और बहुत से कुछ भी समझ में नहीं आता ना सर। कौन सा हिस्सा देखा है? चलिए ऐसा समझ लो।
मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं कहीं और। नवीन भाई सागरिया, आप बात करेंगे? बोलिए। हाँ सर, नमस्कार, जय हर सिंह। मैं अब 60% देखा हूँ सर, और नोट भी बना रहा हूँ। ओके, 60% देखा है, क्या क्या देख लिया है आपने? ये सेलिंग के बाद में ज्ञान और उसकी सेलिंग टिप्स देखा हूँ सर। सेलिंग टिप्स नाम की तो कोई चीज है नहीं कोर्स में, सेलिंग के स्टेप्स जरूर हैं। सेलिंग सर। कैसे करना है ये ज्ञान कौशल के बारे में ज्ञान। नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग टॉपिक है। कौशल अलग टॉपिक है, ज्ञान अलग टॉपिक है। स्किल अलग है, नॉलेज अलग है, दोनों है। ASKD, मतलब सबसे पहले रवैया, एटीट्यूड पे बात की गई है, फिर स्किल, फिर नॉलेज, और फिर डिसिप्लिन। तो वो दोनों अलग अलग बातें हैं, पर चलो अच्छी बात है, कम से कम आपको ये नाम आप बोल रहे हैं, यानी आपको ध्यान में है कि कुछ तो है। नोट्स बनाए हैं नवीन भाई? हाँ सर, बना है। ओके, तो उपयोग कर रहे हैं इसको फील्ड में जाके? हाँ जी, कर रहे हैं सर। ओके, तो क्या फर्क पड़ा है? कुछ कुछ में फर्क महसूस हो रहा है आपको करने के बाद? हाँ सर, बहुत फर्क पड़ रहा है सर। मैं बड़ी स्कैनर भी लेता हूँ, और उस जिन लोगों के पास जाता हूँ उनको पहले बड़ी स्कैनर करता हूँ, और बाद में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बारे में बताता हूँ, और न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट सब सजेस्ट करता हूँ सर। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपके ग्राहकों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो रही है? नए ग्राहक मिल रहे हैं आपको? क्योंकि हाँ सर, बढ़ोतरी हो रही है सर। कोर्स आपको सब में मदद कर सकता है, इसके लिए वो प्रश्न है। चलिए, ठीक है, हाँ जी। ये तो अपन और आगे बढ़ते हैं। और कोई और साथी है जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मैं ही एक एक व्यक्ति के पास आऊंगा और समझेंगे कि क्या हम कर रहे हैं कोर्स में, कौन सी चीज है जो हम सीख रहे हैं। या रामदयाल जी, आप आइए। सर जी, आरसीएम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी, जी सर। सर कितना देख लिया है सर कोर्स? सर कोर्स कितना देख लिया है? सर कोर्स मैंने देख लिया कंप्लीट, और मैं उसका उपयोग भी कर रहा हूँ। आज भी मैं न्यूट्री चार्ज व्यू का वीडियो दिखा करके एक न्यूट्री चार्ज व्यू बेच के आया हूँ, और एक न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, और एक न्यूट्री चार्ज किड्स। ये 3 वीडियो दिखाए थे सर, और तीनों को जो है मैं दे करके आया हूँ सर। अभी ओके, बस आके पहुंचा हूँ, मैं लेट भी हो गया था सर। तो कोर्स देख के अलग क्या कर रहे हैं आप? ये तो आप पहले भी कर लेते हैं। सर, जो नए कस्टमर हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर वो जल्दी से तो विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन फिर हम उनको ये वीडियो दिखाते हैं अपना एक्सपर्टिफाई का ऐप खोल करके, फिर उनको दिखाते हैं, फिर उनको अपनी वो जो न्यूट्रीचार्ज की एक जो कैटलॉग है उसके बारे में दिखाते हैं, उनको बताते हैं, तो तो अभी क्या विश्वास है होता कि ही हम है। दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं रामदयाल जी। जो आप बात कर रहे हैं वो जी सर। न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज की बात कर रहे हैं। जी सर। वो कोर्स फ्री मिलता है जब आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो जी मैं सर। प्रश्न आपसे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना देखा है आपने? सर मैंने पहले तो कंप्लीट देख लिया था, हम्म, नोट्स भी बना लिए थे, सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लोगों अच्छा, से जो है फीडबैक भी ले रहे हैं। क्या क्या आपका C1 to C5 का लिस्ट कितना बन गया है? सर C1 और C5 तक जो है मेरा
फैमिली का और रिलेशन का, और जो मेरे जो साथी थे उनका तो मैंने पहले बना रखा है 50-50 लोगों का। अब मैं Okay. C5 पे जोर दे रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग हो गए अभी C5 में? सर पहले जो लिस्ट थी उसमें से कुछ लोग जो है अभी बीच में कुछ ट्रांसफर से हो गए, तो वो दूर चले गए, तो उनसे बात नहीं हो पाती है, वो कुछ बिजी भी हैं। अभी लगभग 80 कंप्लीट हो गए सर। 80 C5 में? बहुत हाँ It is जी। not bad. Very good. which is good. अगर C5 में 80 लोग हैं, हाँ जी। हाँ, ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर अब उनके पास में सिर्फ एक बार जाने की बस है। भाई थोड़ा मौसम खराब हो रहा था, 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, तो निकल नहीं पा रहे थे, और अब मैं उनके पास जाने की भी तैयारी में हूँ। मौसम जो है अब ठीक ठाक सा हो गया है, तो अब उनसे मिलेंगे भी, रेफरेंस के माध्यम से भी आ रहे हैं कुछ, और कुछ जो है अपनी टीम के लोग हैं उन्होंने भी अपने मिलने वालों का जो है नंबर भी दिया है, और उनसे फोन पे बात भी हो गई है। एड्रेस भी नोट कर रहे हैं उनका एक डायरी के अंदर कि कौन Really, कहाँ can रहते हैं, we क्या speak करते हैं। 5 minutes on C5 or importance of C5? I think this is also हर दिन But I हमको was thinking, good that you brought this up, because see, ये जो C5 है ना, जो मैं कहता हूँ हमेशा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए C5 बहुत जरूरी है। और C5 यानी साधारण भाषा में हम बात करें तो अनजान लोग। अनजान लोग। जी सर। बिल्कुल। अब अनजान लोगों तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। मोटा मोटा कोर्स में मैंने बताया 2 तरीके हैं। उसके अलावा भी और एक है, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो वो एक और तरीका हो सकता है। लेकिन जो 2 बेसिक तरीके हैं जी। जहाँ पे आप पहुंच सकते हैं खुद होके, वो है या तो वो लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, आप सीधे उनसे मिलने चले जाएं, जिसको सेल्स की भाषा में कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है। जी। वो एक तरीका है। और दूसरा है रेफरेंस। पर्सनली हम रेफरेंस के तरीके को बहुत अच्छा मानते हैं, जी सर। क्योंकि रेफरेंस के तरीके में क्या होता है कि भरोसा जल्दी आ जाता है सामने जी वाले। सर। जी सर। आप किसी व्यक्ति से ऐसे ही जाके उसका दरवाजा ठकठकाएंगे तो वो आपको जानता नहीं है, तो उसको समय लगेगा आप पे भरोसा करने में। लेकिन जी अगर सर। आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे उनके घर पे किसी और रेफरेंस से, जी। तो वो जो है वो फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा उससे। अब C5 बनाने में हम लोगों को आलस क्यों आता है या डर क्यों लगता है? क्योंकि C5 बनाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। वो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं बनने वाला। उसके लिए जी। आपको लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और ये मनुष्य स्वभाव है कि हम मदद मांगने से शर्माते या घबराते हैं। जी सर। तो इस जो है ना आदत को, इसको हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि हम C5 के लिए लोगों से मदद मांगे। और C5 का रास्ता कहाँ से जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ C5 जो है वो आपके C1 to C3 में से आपको C5 मिलने वाला है सबसे ज्यादा। देखिए कैसा होता है, जैसे आपने अभी बताया कि आपने मित्र और परिवार की लिस्ट बनाई 50-50 लोगों की, ऐसा आपने कहा, राइट? जी सर। अब क्या है, ये जो 50 लोग हैं, मान लीजिए उसमें से एक कोई नाम लेते हैं, एक कोई भी आप मित्र का नाम लीजिए जो आपके क्लोज मित्र हैं। हरिओम गुप्ता। हरिओम गुप्ता जी। अभी जी। हरिओम गुप्ता जी को का अगर हरिओम गुप्ता जी अपना C1 to C3 बनाएंगे तो उनमें से सभी लोगों को आप जानते होंगे क्या? नहीं सर। नहीं जानते होंगे। ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार के एकदम क्लोज लोग 1-2 लोगों को जानते हैं। जी। तो क्या होता है कि जो आपके C1 to C3 में हैं, उनके C1 to C3 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, सैकड़ों में होंगे। और पर वो लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो वो आपको, 1 मिनट में आपको मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि आवाज थोड़ा ये रहे, मैं आपको फिर मौका दूंगा बोलने का। अब मान लीजिए हरिओम गुप्ता जी ने आपको उनके एक मित्र का नंबर दिया, जिनका नाम 1 मिनट के लिए हम मानते हैं मुकेश भाई। अभी हरिओम गुप्ता जी मुकेश भाई से 25 वर्षों से मित्र हैं और दोनों का एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, और आप मुकेश जी को नहीं जानते। अब आपने हरिओम जी को रिक्वेस्ट किया कि यार आप मुझे कोई अच्छे लोगों से मिलवाइए जिनको कि मैं, जैसे आपकी मदद कर रहा हूँ स्वास्थ्य के बारे में सलाह देके, और लोगों की मदद कर सकूं।
उन्होंने मुकेश जी का आपको नाम और नंबर दे दिया। अब जब आपने मुकेश जी से बात किया और आपने अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंचे, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस परिस्थिति के। वो सोचिए, जब मुकेश जी को आप नहीं जानते हो, डायरेक्टली ऐसे ही अनजान के रूप में मिलने जाते, और वही आप हरिओम गुप्ता जी से रेफरेंस लेके जा रहे हैं, तो कौन सी परिस्थिति में आसान काम होगा? अनम्यूट कर लीजिए रामदयाल जी। सर, जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने अपने मिलने वाले का नंबर दिया है, तो मैं सर उनके साथ में बैठ करके उनके माध्यम से अपने फोन पे एक बार कॉलिंग कर लेता हूँ सर। हाँ, तो फोन पे कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट ले लेना है। हाँ जी। अब आपने जब ले लिया ना, तो जैसे जो भाई अभी उनके पिताजी के 25 साल पुराने मित्र अगर कोई है, तो आपको 25 साल नहीं लगेंगे उनके साथ वैसा रिश्ता बनाने में। आपका काम 25 मिनट या 25 घंटे या 25 दिन में हो जाएगा, क्योंकि बीच में मुकेश जी का भी भरोसा है। मुकेश जी को हरिओम जी पे भरोसा है, हरिओम जी को आप पे भरोसा है। वो भरोसा ट्रांसफर हो जाता है, तो मुकेश जी को आप पे भरोसा आ जाता है, जबकि आप उनको जानते नहीं। ये C5 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो C5 जब आप रेफरेंस के रूट से बनाएंगे तो दो बातें होंगी। एक तो बहुत जल्दी जल्दी लिस्ट बनेगी। क्यों जल्दी बनेगी? मान लीजिए ज्यादा नहीं, आपने आपके C1 और C2 आपने बोला 50 मित्र हैं, 50 परिवार के लोग हैं। मान लीजिए आपने सबको बोला यार एक एक नाम बताओ मेरे को बस, तो भी ये 100 के कारण आपको 100 नाम मिल जाएंगे। आप खुद अगर 100 बनाने जाओगे तो साल भर लग जाएगा। लेकिन अगर मदद मांगोगे, और मदद कैसे मांग, लोगों को ये बताइए कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, लोगों को स्वास्थ्य रखने में मदद करता हूँ, उसके लिए मेहनत करता हूँ, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर एक किसी व्यक्ति का नाम और नंबर दे सकते हैं जिससे उनको भी फायदा हो जैसा आपको हो रहा है, ऐसा आप उनको बोल सकते हैं जो आपके ग्राहक है। मान लीजिए कोई ग्राहक नहीं है, तो उसको बोलिए कि सर आप मुझे इतने वर्षों से जानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे किसी से मिलवाइए, और जिनसे आप मिलवाएंगे ये मेरा वादा है कि मेरे कारण आपका नाम खराब नहीं होगा। वो आपको ये नहीं बोलेंगे यार ये किसको किसको भेज देते हो तुम, ऐसा नहीं हो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कहूंगा या करूंगा जिससे कि वो नाराज हो जाए। पर मुझे आप रेफरेंस दीजिए कुछ लोगों का जिनसे मैं मिल सकता हूँ, तो बिल्कुल मिलेगा रेफरेंस। भले आप एक या दो का ही मांगिए। रेफरेंस मांगने के भी फिर अपने अपने तरीके होते हैं। आप फोकस रेफरेंस मांग सकते हैं कि भाई इस जगह रहने वाले लोगों का में अगर आप किसी को जानते हो तो, या आप इस तरह की नौकरी करने वाले किसी लोगों को जानते हो क्या, या आप रिटायर हो चुके लोग, तो वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो भी लिस्ट आप चाह रहे हैं, जो भी लोगों से आप मिलना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप ये दूसरों को पूछते हैं, मदद मांगते हैं तो आपको संभावना बहुत बढ़ जाती है मदद मिलने की, और फिर आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये C5 इस तरह से करना। अगर C5 रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर C5 हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं या बना नहीं पा रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे लिए बिजनेस ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। जी पंकज राय जी आइए, बोलिए। थैंक यू सर। मेरा ख्याल सर सर वैसे तो मैं सेलिंग जैसा कि जो भी स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो करके मैं कर लेता हूँ, बट उस एनर्जी के थ्रू नहीं कर पाता हूँ जैसे करना चाहिए। जैसे मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है C5 की लिस्ट पर काम करना, और मैं ज़्यादातर अनजान लोगों के बीच में ही जाता हूँ, और उसमें से कई लोग अनजान लोगों के बहुत। बीच में कैसे जाते हैं, मतलब मैं कैसे? सर डायरेक्ट जैसे डोर टू डोर जाता अच्छा, और कहाँ रहते हैं पंकज जी आप? हूँ। मैं सर बनारस के सारनाथ में रहता हूँ। तो ये जो आप कर रहे हैं, इससे आपको सफलता कितनी मिल रही है? सर मिल तो रही है, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है।
जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। आपने कोर्स कितना देखा है? हाँ, सर मैंने कोर्स मेरे सर क्वालिफाई कर लिया है, सर्टिफिकेट भी आ गया है। सर्टिफिकेट भी आ गया? अच्छा। देखिए अब क्या आज है, एक रोल प्ले भी करते हैं बाद में। हाँ बाद में करेंगे। इंट्रोडक्शन में या वार्तालाप में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि क्या है कि देखिए कई बार ना, अभी इसीलिए ये वीडियो जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था और आपने देखा भी होगा अगर आप शुरू में थे, क्योंकि सर मैं लेट ज्वाइन। रिवीजन कैसे करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर, आप ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको C5 की लिस्ट वैसे नहीं बन पा रही जैसी बनना चाहिए। देखिए एक चीज और जो कोर्स में बताई गई है, और मेरे बॉस ने मुझे सिखाया कि एक ये जो ना ये छूट की बीमारी होती है, एंथुजियाज्म, उत्साह। जब आप में उत्साह होता है ना तो वो उत्साह फैलता है, और आप अगर डरे डरे से बुझे बुझे से रहोगे तो सामने से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। अब वो जब हम काम कर रहे हैं तो हमें वो उत्साह लोगों तक फैलाने की हमें काबिलियत होना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर करती है जब हम सफल होना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, ये चलो एक एक रोल प्ले सम्राट सर के साथ तो आप बाद में करना, पर मान लो मैं आपका एक ग्राहक हूं 1 मिनट के लिए, आप मेरे से रेफरेंस मांगना चाह रहे हो तो कैसे कहेंगे, एक्चुअली करके बताइए। ओके ओके ओके। हाँ नमस्ते सर, प्लीज सर। हाँ जी। जैसा कि जो भी सर मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, हाँ। निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर कि आपके माध्यम से कुछ लोगों का रेफरेंस मिल जाता, जिससे मैं उन लोगों का भी भला कर पाता, उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन लाने की चेष्टा कर पाता। तो ये मेरे लिए सर बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर इस पर आप एक बार फोकस करें तो सर आपके माध्यम से कुछ लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब ये जो आपने कहा ना कि आपके माध्यम से, अब इसको थोड़ा सा हम और, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मिलिंद सर आपको अब 6 महीने हो गए मेरे साथ में हमारे रिश्ते को, और आप देख ही रहे हैं कि मैं जिस तरह आपकी मदद कर रहा हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ऐसे सिर्फ 2 लोगों के नाम बताएं जो आपके जैसे ही हों, ऐसे ही अच्छे लोगों से मिलना चाहता हूँ मैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आपके 2 मित्रों के बारे में बताएं जिनसे मैं जाके यही बात कर सकूं जो आपसे करता हूं, और ये मेरा वादा है कि आपका नाम खराब नहीं होगा। तो क्या है, रेफरेंस जब हम मांग रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की जरूरत है। आप एक साथ किसी को बोलोगे 10 दे दो तो कोई नहीं देगा, क्योंकि 10 नाम ध्यान में आते नहीं है। तो 1 या 2 से शुरुआत कीजिए। जैसे अभी जब हम रामदयाल जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने ओम गुप्ता जी का नाम लिया। एक मैंने नाम पूछा, फटाक से उनके मुंह पे एक नाम आ गया कि भाई ये मेरे अच्छे मित्र हैं। क्यों आ गया? क्योंकि यूजुअली एक देने में हमें कुछ न बुरा लगता है, ना कोई शर्म होती है। एक साथ हम 10 नाम नहीं देना चाहेंगे, तो 10 पूछ के फायदा नहीं है। 1 या 2 से शुरुआत कीजिए, और अलग अलग लोगों से आप इस तरह कि मैं उनकी भी मदद वैसे ही कर सकता हूं जैसे आपकी मदद कर। बहुत आपका अप्रोच एकदम सही था, ऐसा आप करेंगे। आप पर ये करते समय पे अभी एक अंतर देखिए, आप सब लोग देख रहे होंगे, आप 40 मिनट से मुझे देख रहे हैं, आपको मेरे चेहरे पे एक मुस्कान नजर आ रही है शुरू से? जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बताइए। और आप कितने लोगों के चेहरों पे मुस्कान है? आधों से ज्यादा के नहीं है। तो कैसे सामने वाले को कॉन्फिडेंस आए? कैसे सामने वाले को, मैं क्यों मुस्कुराता हूं, एक तो वो आदत बन गई है। दूसरी बात यह है कि उससे आप लोगों को बोलने में आसानी रहेगी, आप लोगों को खुलने में आसानी रहेगी। एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति से हर कोई बात करना चाहता है। वैसा ये सड़ा सा मुंह लटका के बैठे रहूंगा तो आप में से एक आदमी बात नहीं करेगा। करके देखिए, प्रैक्टिकल चीज है ना। मेरे एक मित्र के दादाजी
हमेशा कहते थे कि रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे, मतलब कुछ काम होने वाला नहीं है रोते हुए जाओगे। सो एक क्या होता है एंथुजियाज्म, आपको जब ये करना है। अच्छा, अभी तो जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कई बार हम फोन पे बात करते हैं, आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन फोन पे भी आपकी जो वेवलेंथ है, आपकी जो वेव्स है ना, वो ट्रैवल करती हैं। अगर आप खुश है तो मालूम पड़ता है सामने वालों को कि आप बात करके खुश हैं उससे। और हर व्यक्ति एक एनर्जेटिक व्यक्ति से, एक एंथुजियास्टिक व्यक्ति से डील करना चाहता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, ये बदलाव आप करके देखिए अगले हफ्ते भर बाद, और फिर मुझे बताइए एक हफ्ते बाद कितना फर्क पड़ा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। और एक बात, इस कोर्स में बताई हुई, इसीलिए जब कई में से आपसे कई लोग कहते हैं कि हमने ये सेलिंग टिप का चैप्टर देखा, इस कोर्स में कोई टिप आपको नहीं दी गई है। टिप देने के लिए कोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अंदर से बदलना सिखाया जा रहा है। ये सब बातें जो है ना, ये आप अगर इसको सिर्फ इसका दिखावा करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब मन के अंदर इसको उतारेंगे, जब वो मुस्कुराहट अंदर से निकलेगी, लगातार निकलेगी, धीरे धीरे आप फेमस हो जाएंगे इस बात के लिए, यार ये व्यक्ति के साथ मजा आता है यार काम करने, इसके साथ रहो तो ये खुश रहता है हमेशा। तो इसको एक आदत बनाना पड़ेगा, इसको एक स्वभाव का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसको व्यवहार का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इन सब चीजों। और फिर आप देखेंगे कि सवाल सिर्फ C5 का नहीं है, दुनिया में इतनी जगह आपको मदद मिलेगी। लोगों को मदद करने का इंटेंशन रखिए। एक बहुत आसान तरीका जिंदगी में आगे बढ़ने का है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद करना। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ तो मैं आपको पूछ रहा हूँ C5 की लिस्ट कैसे बनाऊं, और आप मेरे को ये क्या फालतू बात बता रहे हो। ये फालतू बात नहीं है, ये बहुत काम की बात है। आप बिना वजह लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, बिना कोई चीज एक्सपेक्ट किए। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है जिंदगी में। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, करीब करीब कुछ महीना पहले जब मैं किसी के घर में जाता था, तो मेरे दिमाग में जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये फिजूल की बातें चलती थी कि अरे अब प्रोडक्ट निकल गया। तो ये भाव नहीं आता था, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं सर एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। एक सफल सेल्समैन में रह चुका हूँ, वो भी इंश्योरेंस जैसी फील्ड में। तो ये जो आप सबको यहाँ बताया जा रहा है वो है जो जिससे मतलब रिजल्ट आए हुए हैं, और हर किसी को आने ही वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर से एक अच्छा इंसान बन रहे हैं। और दुनिया में कौन है जो एक अच्छे इंसान से डील नहीं करना चाहता? हर कोई करना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति भी चाहता है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति से डील करे। तो लोग सामने कैसे भी हों, अगर हम स्वयं को अंदर से बदलेंगे, गारंटेड रिजल्ट आएंगे। और छोटी छोटी बातें हैं, ये करेंगे ना बहुत जल्दी। तो मैं आप जैसे बता रहा था, मेरे एक बॉस है, वो कहते थे हमेशा कि एंथुजियाज्म, खुशी जो है ना, वो छूत की बीमारी है, सफलता। आप जितना खुशी देते जाएंगे वो फैलते जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दुख भी वैसा ही है। आप चेहरा लटका के घूमेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे अपने को जिंदगी में। तो जितना हम खुद को एंथुजियास्टिक रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने अगर इस प्रोफेशन में आए हैं, हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में हमको पढ़ना चाहिए। तो इसको अप्लाई कीजिए पंकज जी, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, कोई मतलब प्रश्न ही नहीं है। तो और वाराणसी बहुत बड़ा शहर है, वहाँ तो स्कोप बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सरिता जी आप आइए, आप कुछ कह रही हैं। जय सिंह सर। जी बताएं। कह रहे सर हमको जो है C1 C3 ये बता दीजिए थोड़ा फिर से। अच्छा, C1 C2 C, आपने कोर्स देखा है वैसे सरिता जी पहले? हाँ सर पूरा देख लिए। तो ये आपने कहीं तो देखा होगा, C1 C2 C3 कोर्स में बताया गया है। हाँ सर।
तो आपको ध्यान में कहाँ देखा है आपने? सर ध्यान भी नोट्स पूरा बनाए नहीं है सर, ध्यान में नहीं है। तो पहले हम वो भी करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन नोट्स देखिए क्या है, आधा अधूरा जो है काम नहीं करें, हम पूरा काम करें। जब जिस तरह बताया गया है कोर्स को देखना है, नोट्स बनाने हैं, तो हम यस सर। पूरा करें, क्योंकि पूरा करेंगे ना तो फायदा होगा। जैसे अभी मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा, तो नोट्स बनाए अगर होते तो बहुत आसानी से आप कोरिलेट कर पाते, जो बताया जा रहा है आपको याद आसानी से रह जाए। तो C1 यानी होता है परिवार के लोग, C2 यानी मित्र, C3 यानी जो आपके सहकर्मी हैं, या जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपका बिजनेस में किसी को वास्ता पड़ता है कुछ खरीदने में, बेचने में, आपकी बात चीजों को इधर से उधर ले जाने में, जो लॉजिस्टिक्स के लोग लगते हैं, कोई भी हर तरह के लोग C3 में आते हैं। तो आपके सहकर्मी या जो बिजनेस में आपके साथ। C4 में आते हैं अनौपचारिक रिश्ते, कैजुअल कॉन्टैक्ट, मतलब जिनको आप सिर्फ हाय हेलो के रूप में जानते हैं। जैसे आप बाजार में जाती है, कोई दुकानदार आपको देख के मुस्कुराता है, पर आप ना उसका नाम जानती है ना कुछ, लेकिन सिर्फ चेहरे से आप एक दूसरे को जानते हैं, वो भी आपका नाम नहीं जानता है। इनको कहा जाता है अनौपचारिक रिश्ते, कैजुअल कॉन्टैक्ट। और पांचवी चीज होती है C5 यानी अनजान लोग। तो C1 यानी परिवार और C2 यानी मित्र, ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से बनानी है। जी सर। एक बात आप लोग सब ध्यान रखिए, यूजुअली परिवार और मित्र के लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। तो आप ये मेरे को प्रश्न पूछ सकते हो कि सर जब नहीं खरीदने वाले तो इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो लिस्ट बनवाने की? जी कि अगर सर। C1 और C2 वाले खरीदने ही नहीं वाले हैं तो लिस्ट क्यों बनाना है? लिस्ट इसलिए बनाना है क्योंकि C1 और C2 आपको सबसे ज्यादा रेफरेंस देंगे, C5 सबसे ज्यादा आपको C1 और C2 से आएगा। C1 और कैसे C2 सर? तो आपके परिवार और आपके मित्र से आपको सबसे ज्यादा अनजान लोगों के बारे में पता पड़ेगा। जी सर। कैसे? क्योंकि वो C1 वाला आप पे भरोसा तो करता है, पर आपसे डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं पे आप कोई ना कोई प्रोडक्ट चिपकाने के लिए आ रहे हो, तो वो आपसे दूर भागना चाहता है। जैसे एक जमाने में कहा जाता था ना कि भाई अगर किसी से दोस्ती तोड़नी हो तो एमवे बिजनेस ज्वाइन कर लो, फिर वो आदमी आपको घर में आने ही नहीं देगा। अब वो उन लोगों पे निर्भर करता है जिनको समझता नहीं है बिजनेस के बारे में। लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो हमारे इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस, नेटवर्क का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वो बताने का तरीका होना चाहिए। लोगों को ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई चीज उनको चिपकाने या बेचने आए। उनको ये लगना चाहिए कि आप उनकी मदद करने आए। तो ये आप C1 और C2 लिस्ट पूरी बनाइए और इन लोगों से फिर, और पहले कोर्स का वो हिस्सा दोबारा देखिए, नॉलेज में जहाँ ये बताया गया है उसको एक बार फिर से देखिए और नोट्स बनाइए। सरिता जी, शॉर्टकट नहीं अपनाना है अपने को, ईमानदारी से नोट्स बना के काम करना। ये इजी कोर्स नहीं है, आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पूरा आपका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं। ये आप मूवी टाइप देखेंगे तो नहीं होगा। यस सर। है ना, थोड़ा समय दीजिए दोबारा और देखिए। पर मुझे ठीक। खुशी इस बात की है कि आपने प्रश्न पूछा, यानी आप कुछ हाँ, करना चाहती हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा है, और वो इच्छा पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। या सो वी कैन डू सम रोल प्लेज। आई एम रेडी। सुजीत जी का कुछ हाँ क्वेश्चन? सुजीत जी बोलिए प्रश्न आपका। नमस्कार सर। हम्म, वो मैं ये पूछ रहा था कि आपने वो जो अभी तीसरा तरीका बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके तो बारे में उसका सम्राट सर बात जैसे करेंगे, वो अपने सम्राट हेलो सम्राट का टॉपिक है। हेलो सम्राट सर आपको सोशल आपकी मीडिया, आवाज नहीं आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, सम्राट सर आपको सोशल हेलो, मीडिया के बारे में बताएंगे। नहीं, आपका फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपकी सुजीत आवाज जी। नहीं आ नहीं नहीं, आपके मिलिंद। फोन में दिक्कत है, हाँ। हमको आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, बोलिए सुजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं नहीं, फोन में कुछ। हेलो। एक मिनट, मैं आपको चलिए। so Sam, you want to do a role play with someone? Let's see. हाँ, चलिए।
पंकज जी से के साथ करते हैं क्या? पंकज जी आइए, अपॉइंटमेंट लेंगे। सर जो आप देते सर वो करेंगे। नहीं, आपके जो नहीं, आपका इंट्रोडक्शन तो ठीक ठाक ही रहेगा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। आ गए हैं। ओके। मिलिंद, आप बैकग्राउंड बता। तो आप सम्राट सर को आपने पहले फोन किया, कोई रेफरेंस दिया, आपने बताया कि इन्होंने उनको सम्राट सर से मिलने को कहा है, सम्राट सर ने आपको मिलने का समय दे दिया। अभी आप पंकज जी उनके सामने बैठे हुए हैं, आप उनके घर में उनके सामने बैठे हैं। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति ने जिसने आपको मिलने का समय दिया है उसके घर पे अगर आप चले गए तो उसके बाद आप क्या करने वाले? ओके, थैंक यू सर। ओके। सम्राट सर नमस्ते। नमस्ते। अ, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। ओके सर, मिलिंद सर ने आपका सर नंबर दिया है हाँ अ, कि कुछ बात करने के लिए, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बात करने के लिए। हाँ, एक्चुअली बताइए। उससे पहले सर मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं सेल्फ पंकज राय और मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ हाँ, और मैं स्वास्थ्य से संबंधित काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ सर, जैसे क्या करते हैं सर आप? किस प्रोफेशन से हैं सर आप? मैं एक बैंक में काम करता हूँ। ओके। बैंक मैं में बैंक, सॉरी, क्या बताया? बैंक में भी जॉब प्रोफाइल होती है सर, जैसे क्लर्क या जैसे हाँ हाँ हाँ, मैं बैंक में सेल्स में काम करता हूँ। बैंक में सेल्स। हाँ हाँ। ओके ओके। तो फिर सर हम दोनों लोग का प्रोफेशन लगभग एक ही है कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि यू कैन बहुत ही सेल। फ्रस्ट्रेटिंग प्रोफेशन है, सब लोग ना ही बोलते हैं बस। नो नो, वो तो है ही सर। हाँ निश्चित तौर पर सर कि सेल्स दुनिया का सबसे महान काम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। हाँ। और आप भी सेल में है। आपको मैं मान लगता है? जी। अच्छा, क्यों मान लगता है? मेरे को मान नहीं लगता है। अच्छा मेरे अच्छा। को बहुत स्ट्रेसफुल लगता है ये प्रोफेशन। नहीं सर, शुरुआत में जरूर स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन हर इंसान को, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, कि 90% पैसे से ही उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हमें हाँ, तो 90% के लिए फाइट करना है। तो करेक्ट। फाइट करना ही है, तो फिर सेल्स ही एक दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हाँ जो भी, अगर आप देखें सर, जैसे मान लीजिए आप बैंक में है, सपोज दैट सर, तो अगर आपका सेल्स में जैसे डिपॉजिट कराना होता है या किसी को लोन दिलवाना होता है, यही काम होता हाँ है ना सर। हाँ, वही काम होता है। तो सर अगर आप किसी को लोन नहीं दिलवाएंगे तो उनका काम कैसे होगा? यानी उनको हाँ सर्विस देने के लिए तो कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। हाँ, वो भी सही है कि, लेकिन इतना सब टारगेट टारगेट रहता है, इतना प्रेशर, बाकी लोगों का तो कुछ प्रेशर ही नहीं है। हाँ सर, ये तो आप सही कह रहे हैं सर, कि आपके प्रोफेशन में, सेल्स में टारगेट है। हमारे यहाँ टारगेट होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ टारगेट लिया जाता है। हाँ, ये तो बताइए। सर, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? यस। सर, जैसे आप फील्ड में रहते होंगे, सेल्स में, चूंकि फील्ड में ज़्यादा वर्कआउट करना होता है, इस दौरान आपको कुछ वीकनेस वगैरह फील होती है या कुछ थकान वगैरह महसूस होती है इस तरह की चीजें? थकान, अभी मैं फील्ड में हूँ नहीं, घर में आके थकान महसूस तो होती है। घर में होती है, ड्यूरिंग फील्ड में नहीं होती? ड्यूरिंग फील्ड तो टाइम नहीं होता है, यहाँ से वहां भागो बस, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, बस यही चलता है। सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। ओ सर, तो जैसे सर आप फील्ड में रहते हैं, घर पर आते हैं, थकान हो जाती है, तो जैसे डेली के रूटीन में आप अपने हेल्थ को मैनेज कैसे करते हैं सर? हेल्थ को मैनेज, ऐसा मैं सोचा भी नहीं, हेल्थ को मैनेज। मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। सर जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि जैसे आप कह रहे हैं कि हेल्थ को मैनेज करने के अब लिए तक तो टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को तो यही मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सोचता हूँ मेरा हेल्थ ठीक ठाक ही है।
नहीं, वो आपका सोचना सही है सर कि जब सही है तो फिर क्यों सोचे, लेकिन क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड से हूँ सर, अ, शरीर के लिए 7 पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो शरीर हमें माँगता है, वो तो हम लोग सर तुरंत ले लेते हैं, एज़ पर लेकिन आप नॉलेज। स्ट्रेस के लिए कुछ कर सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा टारगेट हर महीना, मंथ एंड, क्वार्टर एंड, इसके बारे में कुछ कर सकते हैं कि इतना, हाँ, ये बिल्कुल क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से कुछ हो सकता है? स्ट्रेस के ऑब्वियसली बारे हो में सकता है सर, क्या क्या हो बिल्कुल हो सकता है? सकता है। इसमें सर पहला चीज़ ये है कि अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, तो उसके लिए सर आपको आपको प्रोटीन, विटामिन और ये मिनरल का सेवन करना होगा, जिसके थ्रू आपकी बॉडी हील पैदा होगा, तो आपका माइंड सर रिलैक्स रहेगा। मैं तो अच्छा अच्छा खाना खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ, पूरी भाजी खा लेता हूँ, अच्छा खाने से मेरे को स्ट्रेस कम लगता है। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें खाते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन सर इनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा। फैट्स लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर को अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, जो हम्म। वो हमें तो लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा है, लेकिन वो हाँ। हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आप सर आज की डेट में देख रहे होंगे, डेली न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कभी-कभी कि 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। अभी सुष्मिता सेन 43 साल की है, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो हाँ। ऐसा क्यों हो रहा क्यों है? हो ये रहा है? लाइफ़स्टाइल के कारण। तो ये लोग अपने न्यूट्रिशन से कैसे खान-पान। फर्क पड़ेगा? ये न्यूट्रिशन से कैसे इसे न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना है क्या? हाँ सर, ऑब्वियसली लेना देना है सर, बहुत लेना देना है। अब देखिए सर, आज के दौर में क्या है कि जो खेती हो रही है, उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पर हम जो चीज़ें खा रहे हैं, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल, वो सेहत के लिए चाहिए, लेकिन हमें उसके थ्रू अनवांटेड चीज़ें भी आ रही हैं, जो हमें नहीं चाहिए। हाँ। तो एक तो शरीर हमारा इस तरह नुकसान हुआ, यानी हमारा शरीर ऑक्सीडेटिव हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो हम्म। उसको कहीं न कहीं हमें किल करने के लिए इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन करना पड़ता है, जिसकी वजह अच्छा। से हम अपने शरीर को, जैसे सर एक ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सर आपके पास बाइक है, सपोज़ दैट, हम्म। तो बाइक की क्या हम लोग सर्विसिंग नहीं कराते हैं क्या सर टाइम टू टाइम? हाँ, कराते हैं? तो करवाते हैं। हाँ, नहीं कराते हैं। करवाएँ तो क्या होगा? हाँ, दब जाएगा भाई, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा ना। वैसे ही सर हमारा बॉडी, हमारा शरीर भगवान ने जो ब्यूटीफुल, दिया है, बहुत ये बढ़िया। सर थैंक यू सर। ये जो हमारा बॉडी है ना सर, ये लाख इसकी कोई कीमत नहीं है सर, ये हम्म। अनमोल है। उसी तरीके से इसे हमारे बॉडी को भी सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है इनफ समय-समय पर। सैम और यू वांट टू गो अहेड? नहीं नहीं, आई थिंक वेरी गुड। वेरी गुड। सो ये जो है ना, दिस वाज लुकिंग लाइक अ कॉन्वर्सेशन, ये वार्तालाप नजर आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पीछे पड़े हुए प्रश्न पूछने के लिए। एंड सो ये पंकज जी, अगर आप कर सकते हैं ऐसा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप सफल होंगे। थैंक यू सर, थैंक ऐसा, यू। बस आप लोग हाँ, का ऐसा आशीर्वाद चाहिए सर। एंथुसियाज्म से बात कीजिए, 100% आप सफल होंगे। सर मुझे आप लोग का आशीर्वाद बस चाहिए, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती सर, मैं बट ये बेधड़क कहीं भी। प्रैक्टिस और टाइम भी चाहिए, ओवरनाइट तो नहीं होगा ये। मतलब नो कुछ सर। तो महीना देना पड़ेगा आपको ये नया टेक्निक प्रैक्टिस में। करिए, लोगों से मिलिए, और अभी जो आपने किया है ना, आपने सम्राट सर को कंफर्टेबल बनाने का बहुत प्रयत्न किया कि भाई आप सेलिंग में बहुत महान काम कर रहे हैं अभी। अब उन्होंने पूछ भी लिया कि क्या महान होता है। तो ये इस तरह जैसे ही आपने जो क्रिएटिंग ए कनेक्ट जो बोला गया है ना, वो ये है, उस कनेक्ट को तो उसके बाद वो कंफर्टेबल हो गए बहुत ज्यादा। तो ये हर कोई कर सकता है, ये एक आर्ट है, देखो। इसीलिए सेलिंग को साइंस और आर्ट दोनों बोला गया है। साइंस कहाँ पे, हमने प्रोसेस बनाया 6 स्टेप का, वो साइंस है, लेकिन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आर्ट। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग रहेगा, हर व्यक्ति न पंकज राय रहेगा ना सम्राट दासगुप्ता रहेगा, हर तरह अलग अलग लोग रहेंगे। तो अलग लोगों से हमें कैसे और क्या बात करनी है, वो आर्ट होता है, वो प्रैक्टिस से आता है। चलिए, तो आज के लिए सेशन को अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल सुबह हम मिलेंगे
गायरोला जी कल सुबह करेंगे प्लीज, आज समय हो गया है। कल सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे इसी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। Thank you.